Hello students, welcome to Digital Electronics lecture series. This is lecture number 2. In the previous lecture we studied about binary numbers. Today we will be studying about octal number system. So what are octal number system? So हम यहाँ पे definition देखते हैं. The numbering system with base 8, base बोलो या radix बोलो, is 8 is called as octal number system. So in order to represent any octal number, we use 8 different symbols. So what are these 8 symbols? जो 8 symbols हम use करते हैं represent करने के लिए, that is we have this 0, we use 0, 1, 2, 3 up to 7. So 1 से लेके 7 तक 7 symbols हो गए और 0 को मिलाएंगे तो देर आर 8 डिफरेंट सिम्बॉल्स. तो ये 8 डिफरेंट सिम्बॉल्स यूज करके हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ हमने लास्ट लेक्चर में एक ओडोमीटर का एग्जांपल स्टडी किया था, ओडोमीटर. तो अगर सपोज हमारे पास अगर ऑक्टल ओडोमीटर रहेगा, ऑक्टल ओडोमीटर, तो वो कैसे वर्क करेगा? तो इनिशियली सपोज कार के अंदर ओडोमीटर जो है ऑक्टल ओडोमीटर रहेगा, तो इनिशियली जब कार ने कुछ भी ट्रैवल नहीं किया तो सब 0 0 0 रहेगा. 1 किलोमीटर चलने के बाद दिस विल बिकम 0 0 0 1. देन इसी तरह चलता रहेगा 0 0 0 7 तक, ऐसे चलता रहेगा जैसे नॉर्मल सिस्टम वर्क करता है, डेसिमल सिस्टम. अच्छा, 7 के बाद अगर कार ट्रैवल करती और 1 किलोमीटर, तो 7 के बाद कोई डिजिट नहीं बचा हमारे पास, बिकॉज 0 से 7 तक है, तो ये 7 रीसेट हो जाएगा और उसके लेफ्ट में जो एक नंबर उसको एक आगे बढ़ा देगा. ठीक है, इस तरह चलते चलते बाद में ये हमको मिलेगा 0 0 1 7. ये चलता रहेगा सीरीज में 0 0 1 0, फिर 1 1 1 2 1 3 1 7 तक मिलेगा. नाउ आफ्टर अगेन 1 7 के बाद हम क्या देखते हैं कि 7 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो वो रीसेट हो जाएगा, उसके लेफ्ट में नंबर उसको एक बढ़ा देगा, तो ये चलेगा इस तरह से. ठीक है, ये चलता रहेगा ऐसा. देन वी हैव 0 0 9 9, सॉरी 0 0 7 7 होगा, 9 9 तो है नहीं, तो 0 0 7 7 तक इसी तरह से चलता रहेगा. नाउ यहाँ पर 7 के बाद कोई नंबर नहीं है, ये रीसेट होगा, इसके बाजू वाले को इंक्रीज करेगा, मगर ये भी रीसेट हो जाएगा, इसके बाजू वाले को इंक्रीज करेगा, तो आफ्टर 0 0 7 7 वी हैव 0 1 0 0. So this is how octal number works. इस तरह से ये प्रोग्रेस करता रहेगा. So now yes, we have seen what are octal numbers and how do they progress. तो बहुत मतलब ऐसा होगा कि we need to convert from decimal to octal, octal to decimal, या binary से octal, octal से binary. We will see that soon. Next what we see is from decimal to octal number. यानी अगर हमको कोई decimal number दिया है, तो how to get the octal of that particular number. So let us try the first example. Suppose we are given a decimal number, suppose 12. So 12 to the base 10. ये base 10 बताता है कि decimal number है. We want to get the octal number. So octal number we want to find. I am just putting the question mark here. So अगर हमें याद होगा पिछले लेक्चर में, अगर हमको decimal से बाइनरी करना होता है तो हम divide by 2 करते हैं. तो same way decimal से octal के लिए we divide by 8. So what we do? We just divide by 8. We take this number 12, divide by 8. So of course it is 8 ones are 8, remainder is 4. So we write 4 here. Now 1, it is less than 8, it cannot be divided by 8, so we write 1 here. So this is the required answer. So 12 decimal is 1 4 octal. Now how we got this here? Again we will see this. So this 4, I am writing it here, the remainder, and the quotient which cannot be divided, I am writing it here. So this is the first example. Let us consider the second example. I will write it here only. Let us take a big number. Let us take it like suppose I take it as 63 to the base 10. Let us see what happens in this case. So 63 again we divide by 8. So 7 8s are 56. So we have the 7 8s are 56. So now because 8 8s are 64. So now remainder is 7. We write this remainder 7 here. Now this 7 cannot be divided. So I write this 7 here. So this is what we get. So 63 decimal is 7 7 octal. So I have written this 7 here, and this quotient which cannot be divided further is written here. Okay.
Now let us consider an example. We take another example, number 3. Suppose we want to convert this 105 to the base 10. इसका हमको ऑक्टल कन्वर्ट करना है. What is the octal of this? तो we again divide by 8. ठीक है. So we have 105. इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे. Now please take care in this case. हमें ऐसा quotient select करना है कि remainder is always less than 8. 8 से कम आना चाहिए रिमाइंडर. ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, कोई भी केस हो. तो अभी 105 है, तो 8 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम कि हमें क्वेश्चन जो है हमेशा 8 से कम मिले. अभी ये 105 तो ऑफकोर्स ये कम्प्लीटली डिवाइड तो होगा नहीं 8 से. तो इफ वी टेक दिस 13 8 तो 13 8 हमको मिलता है 104. ठीक है. एंड रिमाइंडर इज 1. नाउ ये 13 जो हमको मिल रहा है क्वोशंट, ये अभी भी 8 से डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 8. सो वी अगेन डिवाइडेड बाय 8. सो नाउ 8 1s are 8, रिमाइंडर इज 5. तो ये जो हमको मिला था यहाँ पर, ये जो 1 मिला था, ये 1 हम यहाँ लिखते हैं. ठीक है. दिस 1 आई राइट इट हियर. जो रिमाइंडर होता है मिलता है हम उसको इसे लिख लेते हैं. दिस इज 5 हियर एंड दिस 1 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 8. तो ये 1 लास्ट में यहाँ पे लिख लेते हैं. ठीक है. ये लास्ट में जो क्वेश्चन मिलता है. ठीक है. तो दिस इज द आंसर. सो आई रीराइट द आंसर हियर दैट 105 डेसिमल इज 151 ऑक्टल. इस तरह से करेंगे इसे. नाउ नेक्स्ट वी डू सम ऑक्टल टू decimal conversion. You'll see some octal to decimal conversion. Let us take the first example. We have octal number. Suppose we have octal number 17. Okay, we are given this octal number. We want to find the decimal of this. So now the first number is 7. So I write 7 here. हम 7 को यहाँ लिखते हैं into 8 raised to 0. ठीक है. प्लस नेक्स्ट नंबर क्या है 1. ठीक है ना. तो क्या करेंगे 1 इंटू 8 raised to 1. नाउ 8 raised to 1 is 8. 8 1s are 8 प्लस 8 raised to 0. 8 raised to 0 is 1. 7 1s are 7. So this comes out to be 15. 1 5. So this is the decimal. This is the octal. 17 1 7 octal and 15 is the decimal of this. Let us take one more example. That would be more than enough. So suppose we have 162. 162 octal है, इसका हमको decimal कैलकुलेट करना है. तो हम क्या करेंगे 162 जैसे है वैसे ही लिखेंगे. 2 तो पहले हम क्या करेंगे, आई एम राइटिंग इट डाउन, यहाँ नीचे लिखता हूँ, जगह नहीं होगी यहाँ पर. सो आई टेक दिस 2 इंटू 8 raised to 0 plus 6 into 8 raised to 1 plus 1 into 8 raised to 2. So 8 raised to 2 is 64 plus 8 raised to 1 is 8. 8 6 are 48 and this 8 raised to 0 is 1. 2 1s are 2. So this comes out to be 50 plus 60 is 110 and this is 114. So this is the answer. So this is as simple. जैसे हमने बाइनरी में भी किया था, अगर हमको बाइनरी से अगर डेसिमल जाना तो वी मल्टीप्लाई विद द पावर्स ऑफ 2. यहाँ पर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई विद द पावर्स ऑफ 8. जो सबसे राइट मोस्ट डिजिट है जिसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बोलते हैं उससे स्टार्ट करेंगे 8 के पावर 0 से और बाद में जैसे ही लेफ्ट बढ़ते जाएंगे 8 का पावर बढ़ता रहेगा. दिस इज हाउ वी डू दिस. तो नेक्स्ट जो कन्वर्जन हम करेंगे दैट इज ऑक्टल टू बाइनरी. तो अगर हमें ऑक्टल नंबर दिया रहेगा तो हाउ टू गेट द बाइनरी ऑफ दैट. लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जांपल. सपोज हमको ये फर्स्ट एग्जांपल करना है. लेट अस अज्यूम दिस वी आर गिवन दिस ऑक्टल नंबर 13. ठीक है. हमें 13 का कन्वर्जन करना है. नाउ बिफोर डूइंग दिस कन्वर्जन हमें जो है एक टेबल बनाना पड़ेगा. वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अ टेबल. वो टेबल हम पहले बना लेते हैं. वो टेबल बन जाएगा तो ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल दोनों कन्वर्जन आसान हो जाएगा. तो आई दिस राइट ऑक्टल नंबर हियर एंड हियर आई राइट द बाइनरी डिजिट्स. So
I write the octal digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So binary digits are 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, then 1, 0, 1, 1, 1, 0 and 1, 1, 1. से ये बहुत इजी है बनाना. हमें 8 नंबर करने हैं, तो राइट मोस्ट डिजिट पर जाएंगे. राइट मोस्ट डिजिट पर तो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 करते रहेंगे. उसके बाद के डिजिट्स 0 0 1 1 0 0 1 1. उसके बाद के डिजिट्स 4 0 4 1. तो ये जो 3 0 है ये 0 का कोड है. कोड मतलब कन्वर्जन है. 1 का कन्वर्जन 0 0 1, 2 का कन्वर्जन 0 1 0, 3 का 0 1 1, 4 का 1 0 0, 5 का 1 0 1, 6 का 1 1 0 और 7 का 1 1 1. So we come to this conversion. What is the binary of this? So 1 3, we write 1 3 as it is. Now what is the code for 1? 1 का कोड क्या है? तो हम यहाँ देखते हैं 1 का कोड इज 0 0 1. ठीक है, तो हम क्या करेंगे 0 0 1 यहाँ लिख देंगे. Now next 3 का कोड इज 0 1 1. तो we write this 0 1 1. That's it. ये हो गया. ठीक है, दिस इज द कन्वर्जन. नाउ मैथमेटिक्स में वी नो दिस. ये लेफ्ट के जो 2 0 है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इसको हम नहीं लिखे तो भी चलेगा. तो बजाय इसके ये 0 0 के वी कैन डायरेक्टली राइट दिस 1 0 1 1. दिस इज द बाइनरी 13 का. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. सपोज वी हैव 6 5 7. 6 5 7. This is a octal number. What is the binary of this? So we did this number 6 5 7 जैसा है वैसे लिखेंगे हम. Okay. We write the code for 6. The code for 6 is 1 1 0. We take this 1 1 0. 5 code is 1 0 1. And finally 7 is 1 1 1. That's it. This is the conversion. So it's very easy. We must learn this table. That's all. Okay students, now we'll do the conversion from binary to octal. तो हमें octal number दिया है, binary number दिया है. We want to find the octal. So suppose I have a number 1 0 1 1 0 0. ठीक है, ये हमको नंबर दिया है. And we need to find the octal of this. हमें octal find करना है, इसका octal क्या है. So I write this number again here. Now see, इसमें क्या करना है हमें. Starting from the least significant bit. ये देखो ये जो है ना ये डिजिट, इसको बोलते हैं least significant. तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं. हम क्या करेंगे 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप ऑफ 3. तो ये ग्रुप ऑफ 3 हो गया, ये ग्रुप ऑफ 3 हो गया. सो ये राइट वाला 1 0 0 1 0 0 मतलब 4 है ये ना, ये कोड 1 0 0 4 हो गया. तो वी राइट 4 ईयर. And 1 0 1 is 5. तो ये 5 4. This is how we do. ठीक है. Then let us see second example. We have suppose 1 0 1 1 0. अगर ऐसा दिया है, this is binary and we need to find the octal of this. तो हम इसे फिर से लिख देते हैं एक बार. इसे मैं लिख देता हूँ 1 0 1 1 0. ये है. ठीक है. नाउ हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करेंगे. वी मेक अ ग्रुप ऑफ 3. तो ये ग्रुप ऑफ 3 बन गया 1 1 0. अभी ये ग्रुप ऑफ 3 नहीं बन रहा है, तो हम यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के बाद एक 0 ऐड कर सकते हैं. ये नंबर को चेंज नहीं करेगा. ठीक है, तो एक 0 ऐड करेंगे तो नंबर चेंज नहीं होने वाला, बिकॉज हमें 3 3 का ग्रुप चाहिए. यहाँ पर राइट में हम 0 ऐड करेंगे, नंबर चेंज हो जाएगा. तो वी कैन ऐड एज मेनी नंबर. जैसे सपोज इफ़ वी हैव अ नंबर, एक डेसिमल नंबर है हमारे पास, सपोज 54 है. इसके आगे 0 ऐड करेंगे 540 हो जाएगा. मगर इसके आगे कितने भी 0 ऐड करो 54 का 54 ही रहने वाला है. तो what is 1 1 0? It is 6 and 0 1 0 0 1 0 is 2. तो 2 6. So this is how we do this. हम यहाँ पर क्या करेंगे
3 का ग्रुप बनाएंगे। ये टेबल मैंने फिर से बना दिया यहाँ पर ताकि हमें सामने रेफरेंस के लिए काम आ जाए। दिस टेबल इज़ वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट, जैसे मैं आपको बताया। राइट मोस्ट जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 0 1 0 1 0 1 0 1 यहाँ तक जाएंगे, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1, देन ये हमको देखा ये 4 zeros और 4 ones। ओके, so that's all students, that's all for today's lecture. We studied in today's lecture we studied about octal number system and the conversion from decimal to octal, octal to decimal, binary to octal and octal to binary. In the next lecture we will study about hexadecimal numbers and the conversions.